Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed so many parts of the chemistry, the basic concept. In this video we are going to discuss law of conservation of mass. How you apply conservation of mass and what are the kinds of conservation of mass. In any reaction there is no addition or no subtraction in the molecules. Always remember, whatever is the backward reaction and how many atoms are in the backward reaction, these are always present in the forward reaction, then that is called equilibrium. So let's first discuss with the law of conservation of mass. इसका मतलब सिंपली होता है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जितने एटम्स होते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के, सेम एटम होते हैं रिएक्शन करने के बाद भी. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी रिएक्शन हुई तो जो रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनने के बाद उनके एटम्स कम हो गए या ज़्यादा हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा. अगर 50 + 50 ml का एडिशन हुआ है तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होगा 100 ml का ही होगा, वो आइदर 90 और 100+ नहीं हो सकता. यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज हुआ है. तो पहले देखेंगे, डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज फिजिकल एंड chemical. Let's start. The law talks about two types of changes, physical and chemical. Let's look at an experiment to verify the part about the physical changes. Let's place some ice cubes in a dish and weigh it. Let's say that the weight is X. If we heat the ice, it will melt and form water. If we weigh the water, we notice that the weight is the same as the weight of ice. This proves that when matter undergoes a physical change, like in this case, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. Now, let's verify the part about chemical changes. We'll fill sodium chloride and silver nitride in the two limbs of Landau's tube. Now, let's seal both the limbs with a rubber cork. Let's weigh the tube and note the weight. This is the weight of reactants before taking chemical reaction. Now, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने एक एच शेप का पूरा टेस्ट ट्यूब ले ली है, राइट? और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ से यहाँ पर गैप होता है, यानी कि जो भी चीज़ रिएक्ट होगी यहाँ से यहाँ होगा, राइट? और ऊपर से हमने रबर कॉक इसलिए लगा दिया है कि कोई भी केमिकल स्पीशीज़, कोई भी केमिकल वेपराइज होके बाहर ना जाए, यानी जो भी रिएक्शन होगा इसी के अंदर रहेगा. तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का कंटेंट अमाउंट कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए. tilt the tube to mix the solutions thoroughly. Reaction takes place and we notice that a white precipitate of silver chloride is formed in the tube along with sodium nitrate solution. Let's weight the tube after the reaction. We observe that the weight remains the same. Thus, we can conclude that when matter undergoes a chemical reaction, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. That is, during any chemical reaction, matter is neither gained nor lost. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इसी को हम बोल सकते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. आपका जो भी मैटर रिएक्शन के पहले जितना अमाउंट था, रिएक्शन के बाद भी उतना अमाउंट रहता है. बस कन्वर्जन किस बात का होता है? आप कहेंगे हाँ, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड चेंज हो गए, कुछ केमिकल बॉन्ड टूटे और कुछ नए केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हुए. ओके, नेक्स्ट देखें. Hence, this law is also called the law of indestructibility of matter. Now let's look at the next law. Law of definite proportions. As the name suggests,
This law deals with the composition of various elements present in a compound. In 1799, Joseph Proust proposed the law of definite proportions. This law states that a pure chemical compound always contains the same elements combined together in the same fixed ratio by mass. Note the point. For example, the water we get from any source such as river, well, lake, sea, or from any other place always contains hydrogen and oxygen elements in the ratio of 1:8 by mass. Thus, we can say that a given compound always contains exactly the same elements in the same fixed proportion by mass. However, this law does not apply if an element exists in different isotopes, आइसोटोप जानते हैं आप? which may form a compound. For example, if a carbon-12 isotope combines with oxygen to form carbon dioxide, the ratio of carbon to oxygen is 3:8. समझ रहे हैं ना, ये मैटर का मास है, राइट? एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना? अंडरस्टूड है 16. तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का कंबाइन हो कितना हो जाएगा? 32. तो ज़रा रेशियो निकालेंगे. 12:32. ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा? 3:8. तो एक कॉम्बिनेशन होता है इसका, राइट? 12:32. तो ऐसे ही करके हम जैसे हमने एग्जांपल दिया वाटर चाहे लेक से हो, चाहे आप लेक में देख रहे हो, राइट? या फिर आप कहीं भी ओशंस में देख रहे हो, या कहीं आप रिवर्स में देख रहे हो, वाटर का कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा. ऐसा नहीं कि लेक में वाटर का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट? उनका रेशियो वही रहेगा. एक्चुअल में वाटर फॉर्म कैसे हुआ, जरा समझें. वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आप कहते हो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, करेक्ट? और H2O तभी बन सकता है जब H2 + O2 बना होगा. अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, जरा समझें. अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है. ये फॉर्मूला केवल हमने वाटर का लिखा है, बट इट इज़ नॉट बैलेंस्ड येट. अभी क्या करेंगे? आपने कहा कि ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2. याद रखेंगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल तो एग्जिस्ट करती नहीं है, करेक्ट? तो फार्मूला कैसे लिखते हैं? जब आप किसी भी एलिमेंट को, आप किसी एटम को कैसे दिखाते हो? सिंगल नहीं दिखा सकते ना, रिएक्शन दिखा रहे हो तो आप कैसे दिखाओगे? ऑक्सीजन कैसे मिलती है आपको? एक्चुअल में O2 के फॉर्म मिलती है, यानी कि एक ऑक्सीजन नहीं मिलती, O2 मिलता है. 2 ऑक्सीजन एक साथ मिलता है, यानी O डबल बॉन्ड O मिलता है. तो हाइड्रोजन ने भी ऐसे मिला, O2 भी ऐसे मिला. जरा लेकिन रिएक्टेंट में देखते हैं, फार्मूला आपने ये लिखा तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे ऐसे. ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए. अब यहाँ से 2H2 लगा देते हैं. एक्चुअल में होता कैसे है? यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्चुअल में कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आप कहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होने पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, 2H2O बनते हैं. अंडरस्टूड हुआ ना? जनरली कैसे बोलेंगे? जनरली हम ऐसे बोलेंगे, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे कंबाइन टू गिव वाटर H2O, करेक्ट? लेकिन जब बात की जाएगी पूरा डिफाइंड, कि आप डिफाइन करो कैसे कैसे बना है, पूरा बैलेंस करेंगे तो आप दिखा देंगे हाँ कैसे कैसे मल्टीप्लाई हुआ है. But if a carbon-14 isotope combines with oxygen, then the ratio of carbon to oxygen is 7:16. नोट द पॉइंट. आइसोटोप की बात अलग हो Another जाती है. limitation of देखें, आइसोटोप्स कौन सा है डिपेंड करेगा ना. आइसोटोप मतलब क्या दिखाते हैं? आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो. यहाँ पे देखो ये 12 है, यहाँ पे कितना है 14. हाँ, एटॉमिक नंबर कितना है 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, एटॉमिक नंबर याद रखेंगे. तो आइसोटोप होगा तो बात डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन याद रखें एक आइसोटोप की बात की जाती है. the law is that elements may combine in the same ratio, but the compounds formed may be different. यस. For example, the compounds ethanol and dimethyl ether have the same number of carbon, hydrogen, and oxygen atoms, but their arrangement is different. वेरी गुड. अब इसे क्या That बोलेंगे? is- बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
एथेनॉल में भी सेम है, और एसीटोन, दिस इज कॉल्ड नॉट एसीटोन, दिस इज ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ROR, राइट, ये क्या है, ये सेम है। नंबर ऑफ एटम्स यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सेम है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, सी मतलब समझ गए ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि बॉन्ड्स अलग अलग है। जिसे आप C2H5 बोल रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसे है, 2 कार्बन ऐसे काउंटेड ऐसे लगे हुए हैं, और इधर से ऐसे ये हाइड्रोजन लगा है, इस तरफ क्या लगा है, OH, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, दिस वन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज C2H5OH। और जिसे आप ये बोल रहे हैं ये क्या है, ये COC है, और इन दोनों कार्बन पे 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे। आप जरा ध्यान से देखो, काउंट सारा सेम है, लेकिन कैसा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH अलग है, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो डिफरेंस है ना, बॉन्डिंग का डिफरेंस है, अरेंजमेंट का डिफरेंस हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम हो बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो क्या हो जाते हैं ये, इन्हीं को कहा जाता है आइसोमर्स। तो दीज आर द आइसोमर्स, करेक्ट। अब देखें पॉइंट्स को, The compounds are different. रेशियो देख लें। In 1804, Dalton proposed the law of multiple proportions. This law states that when two elements combine to form more than one chemical compound, then the masses of one of the elements that combine with the fixed mass of the other element bears a simple ratio. समझे इसको। For example, when the elements carbon and oxygen combine, two compounds, namely carbon dioxide and carbon monoxide, can be formed. As seen in the equation for carbon dioxide, 24 parts by mass of carbon combine with 32 parts by mass of oxygen. Whereas, when carbon monoxide is formed, 12 parts by mass of carbon combine with 16 parts by mass of oxygen. These masses of oxygen bear a simple ratio of 32:16 or 2:1. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी हैं, करेक्ट। यानी कि डिपेंड करेगा कितना पार्ट किससे मिला, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर रहे हैं। अब ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। जब कभी ऑक्सीजन की एक्सेस होती है एटमॉस्फेयर कंडीशन में और वहाँ पे कार्बन कंपाउंड बर्न हो रहा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अगर कभी ऑक्सीजन की लिमिटेशंस हो एटमॉस्फेयर में, सपोज करो हमने एक क्लोज चैम्बर, एक क्लोज रूम में हमने कोई लकड़ी जला दी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर बर्निंग देयर हैज़ टू बी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और मेजॉरिटी ऑक्सीजन तो बर्निंग में कंज्यूम हो गई, ज़्यादातर तो क्या बन गया, ज़्यादातर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की लिमिटेशंस में, ऑक्सीजन की कमी में, डेफिशिएंसी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, तो इन्हें कहा जाता है, ये एक तरह का मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल है। ये रूल किसने दिया था, ऑफ कोर्स डाल्टन ने दिया था।